everyone, today we are going to do the homologous series of the alkanes. So let's get started. First we'll start with the n value as 1. So the general formula of the alkanes you all know is CnH 2n plus 2. So with this we have the n value as 1. So CH 2 into 1 plus 2, that is 2 plus 2, that is 4, CH4. So now we'll start drawing the structure. That will be like carbon in the center and 4 bonds. The drawing is not very difficult because the only thing which you have to keep in mind is that you have to complete the tetravalency of the carbon, because chemistry is a line in which the elements are just there for stability. So iron की stability, कार्बन की stability पूरी attain होनी चाहिए यहाँ पर. So यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 CH4 1 2 3 4. सो ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका. अब हम इसे नेम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब एक कार्बन होता है तो हम क्या नाम देते हैं? यस, मिथ. सो मिथ. यहाँ पर छोटा m हम यूज़ करेंगे. पिछली वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया है कि नेमिंग कैसे होती है. तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स यस, एन. दैट इज़ फ्रॉम एल्केन्स वी गेट द एन. सो दिस इज़ मिथेन. नाउ द मॉलिक्यूलर वेट इज़ 12 into 1, that is of the carbon, plus 1 into 4, that is of the 4 hydrogens. So 12 plus 4, 16 AMU. Similarly, we'll draw for the n value as 2. C2H, 2 into 2 is 4. So 4 plus 2 is 6. C2H6. Firstly, we'll do the name for this. So C is 2. So for 2, we use the eth. And if it is single bond, so we'll use the ane. So it is ethane. Now comes the structure. This we know that single bond. So पहले 2 कार्बन ड्रॉ करेंगे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे. उसके बाद इनकी लेफ्ट ओवर वैलेंसी वाले बॉन्ड्स करेंगे शो. अब वी नो यहाँ पर H6 है, सो यहाँ पे सारों की जगह H लिख दो. चेक करिए कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है. येस, 1 2 3 4 5 6. सो C2H6. और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम करेंगे तो 12 into 2 plus 1 into 6. दैट विल कम 24 plus 6 30 AMU. सो एक चीज़ आप नोटिस करो कि इन दोनों के ना डिफरेंस कितने हैं. दैट इज़ 14 AMU का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में. ये हर एक 2 कॉन्सिक्यूटिव होमोलोगस सीरीज़ के बीच में ज़रूर आएगा सिर्फ 14 AMU का. ओके, देन कम्स द एन वैल्यू एज 3. C3 एंड H की वैल्यू क्या होगी? इससे निकालेंगे हम. अब ये 2n plus 2 क्या करते हैं हमारे डिनोट? ये करते हैं डिनोट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो लेट्स कैलकुलेट. दैट इज n is 3. सो 2 into 3 6 plus 2, that is 8. So its name is, for CS3 we have prop, that is prop, and single bond, so we have ane, that is propane. So we'll draw the structure now. Similarly 3 carbons. Firstly we have to draw, this is the basic thing. पहले आपने कार्बन ही ड्रॉ करने जितने हैं, फिर उनके जो बॉन्ड्स हैं ना बचे हुए, जैसे इसके 2 बच के, क्योंकि 2 यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 हो गए इसके. 4 है टोटल में, तो 2 ऊपर. ओके, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. ओके, सो अब हाइड्रोजन कर दो. इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस. So we'll count 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is C3H8 and the molecular weight will be 12 into 3 plus 1 into 8. That will be 36 plus 8. So 44 AMU. See, here also the difference is 14 AMU only, and this is the overall structure. But if you draw like this also na, a straight,
this is a horizontal, this is vertical, then also it is one and the same thing. Both are the structures for propane. So अब हम n वैल्यू लेंगे 4. सो उसे कैलकुलेट करने के लिए वही CnH2n प्लस 2 वाला ही फॉर्म यूज़ करेंगे, बिकॉज एल्कीन का ये फॉर्म, इस मॉलिक्यूलर उसका फॉर्म ये होता है. तो n जब 4 है तो C4H 2 into 4 plus 2 that is 10. Let's do the naming of this. So we have C as 4. So for this we use but and single bond. So it's ane. It's butane. And the molecular weight, firstly we'll do the structure. So वही एक स्टेप, पहले चारों कार्बन ड्रॉ कर लो और फिर उनके लेफ्ट ओवर बॉन्डिंग ड्रॉ कर ली, फिर हाइड्रोजन हमने फिक्स कर दिए. You can check, it's C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it's butane. We'll calculate the molecular weight, that is 12 into 4, or we'll just add the 14 in this, so we get 44 plus 14, that's 58. Now let us check if it comes 58 or not. So it is plus 1 into 10, that is 48 plus 10, 58 AMU. Yes, you have right. There also 14 AMU का डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में भी. ओके, अब हमारे पास n वैल्यू 5 है. अब 5 है तो हम इसका पहले नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे C5H12, यस, इसी फॉर्म से हमने निकाला है C5H12. सो इसकी नेम क्या होगी, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट. सो इट्स पेंट. एंड यस, एन लगेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं हम. अगर डबल बॉन्ड यूज़ करते हैं तो ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करते हैं तो आइन लगता है. ओके, सो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा. वही हम पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, फिर लेफ़्ट ओवर उनकी बॉन्डिंग्स ड्रॉ कर लेंगे. तो हाइड्रोजन ऑन ईच एंड एवरी बॉन्ड. ओके, सो दिस इज़ द structure of pentane. Sorry, it's pentane. Okay, now the molecular weight, that is 12 into 5 plus 1 into 12, that is 60 plus 12, 72 AMU. This was all for the alkanes homologous series. You can have a look for methane, that is ethane, this is propane, both the chains. For like this also, for ethane and ethane, this butane and pentane also, both the vertical chains and horizontal chains are one and the same thing only. For these we have branch chains also. Like for this we can have the branch chain, like 3 पहले बना दिया हमने ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये कि कार्बन हम इसके सेंटर वाले के ऊपर लगा देंगे. कभी भी ये जो ब्रांच चेंज होती है वो टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगाते. जैसे यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एक ये है और एक ये है. अगर कोई चेन बनानी हो, जैसे हम पेंटेन के अभी ड्रॉ करते हैं सी, तो हमने एक यहाँ पे 4 बनाए. अब एक जो है हम यहाँ करेंगे ड्रॉ, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे कि यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, यहाँ और यहाँ हम नहीं कर सकते क्योंकि टर्मिनल कार्बन से अब इस चेन के, तो यहाँ पर नहीं करेंगे. हम मिडिल 2 में किसी एक के कर देंगे. लेट अस गो फॉर दिस. सो अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, इसके भी हमने वही लेफ़्ट ओवर बॉन्ड्स बना लिए. H H H H H हेयर ऑल्सो. और अब इसके देखो, इसके भी तो लेफ़्ट ओवर है, तो इसके भी H H और एक H. So we see, like after counting also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is a branch chain for pentane. We cannot have them on the terminal carbons. Like here terminal carbon is this and this, but after we remove this तो ये बन जाता है terminal carbon. इसके अंदर भी वही चीज़ है कि टर्मिनल कार्बन के ऊपर नहीं लगाना. अगर यहाँ पे लगाना है, या वैसे इसकी चेन ब्रांच चेन नहीं बन सकती क्योंकि ये चीज़, सॉरी, ये दिस इज़ ऑल्सो एज सेम एज
दिस और दिस, बिकॉज इन दोनों में क्या हमने सिमिलर कैसे करते हैं, क्योंकि टर्मिनल कार्बन्स पहले सर्कल कर लो इन सारों में। ओके, अब देखो टर्मिनल कार्बन के बीच में कितने आए, 1, इसके भी 1, इसके भी 1, तो ये तीनों सिमिलर है। जबकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, अगर हमने इस तरह ड्रॉ करते हैं ये, तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन्स ये आएगा, ये आएगा, है ना। और अगर ये इसके भी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन्स के बीच में दोनों में 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा उस चीज़ में, ओके, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ काउंट करनी होती है कि टर्मिनल कार्बन्स के बीच में, फिर उसे हम सिमिलर काउंट करते हैं ऐसे। So this was all for the today's video. I hope you like the content and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.